Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our second lecture on optimization, and it's for Masters of Mathematics students from ComSats Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so let's start with our second lecture. As usual, a brief recap of what we have done in the last lecture. So last lecture was basically an introductory lecture. So I told you what will be in this course and why should we study this course, and some knowledge about the contents and marking policy and similar things. So there was not a lot of content related to this course in the previous lecture, but we did do some definitions. So what I'll do is I will revise all those definitions related to this course from the previous lecture, and we'll build on them in this lecture, right? So here are a couple of things we talked about in the last lecture. So first I gave you some introduction to optimization. So that's your course, right? So for some definition of optimization and why should we be studying optimization, and some problems on optimization, 4 very detailed problems, and then then a few problems which are just listed and that they are optimization problems. Okay, so the 4 detailed problems were very important and crucial to give you an idea what this course will be all about, right? So why do we need optimization? That's one of the most important questions that one should ask about any course. So why are we studying this course? So the definition along with the problems hopefully have convinced you that optimization is a very applied course. It's related to our real life problems, and we can actually do something creative using this course, right? So I will go through the introduction again. I may not go through all the problems, but you must remember what are the sort of problems we were dealing with. So there were some transportation problems, for example, effective assignment of resources, for example, maximizing your profit, minimizing your cost. So these are the kind of problems that you can study in optimization, and you can deal with them in optimization. Okay, so let's look at introduction again. Okay, so what is optimization? Optimization is the art of obtaining best policies to satisfy certain objectives while at the same time satisfying fixed requirements. So this is the same definition that we did in the last class. Okay, so optimization is an art. I emphasized on art last time, and we just briefly touched on it. Why are we calling this art, and then why are we studying it in mathematics then if it's an art? Well, there are certain reasons for it. But what do we want to do? We want to, so we have some options available. We want to make a policy, let's say, in which we want to take the best possible option available to us. Okay, so best possible policy that can be designed. But these policies, these options are not very independent. So each option will have its own drawbacks, and each option will have its own advantages. So you have to keep those drawbacks and advantages in mind. So you have to basically minimize the drawbacks and maximize your advantages. But this is not it. You will always have some fixed requirements that you have to deal with, and you will always have a goal in mind. Okay, so there'll be some options which may not satisfy your requirements. For example, you can maximize your profits if you invest more, but you only have a fixed amount to invest. You cannot invest an infinite amount. So you have to be in your means. So you have to live in your means, and then make the best out of those, right? So you cannot just, for example, borrow money from people, and then you say, I have a lot of money. You don't have a lot of money. You have borrowed money from people, and you have to return that money back, right? So you have to live within your means. So this is your fixed requirement. I cannot spend more than this much amount of money, but I still want to maximize my profits. So this is your fixed requirement. Okay. Moreover,
you will always have an objective in mind. For example, your objective could be, I want to maximize my profit. So that's your objective. So you want to maximize your profit. Maybe this is not your objective. You just want to minimize your cost because you do not have much money to spend. So you want to spend less and you can compromise on profit. So that's your goal, minimize your cost. Maybe this is not your goal. Your goal could be, I want to just increase my assets. So for example, you want to buy a particular product, okay, and it's only limited edition, okay, so it's available in the market but it's very, very limited. So you, in that case, your objective is to just get hold of that product, and you will not probably care about what is the cost, what are my profits on it. So you will definitely not care about any of these things. Your objective is just get that thing, just get that product, okay. So everything, every problem that you have in optimization in real life will always have a certain objective attached to it and will always have some fixed requirements, okay. So so you have to live within those fixed requirements and you have to satisfy your goal, and then keeping these two things in your mind, you have to choose the best possible option. Last time I think I gave you an example that you want to travel from let's say Islamabad to Lahore, but you want to travel through Gujranwala, right? So now traveling from Islamabad to Lahore is your objective, but your requirement is you have to go to Gujranwala, right? So now you cannot just independently choose a route from going from Islamabad to Lahore. You have to choose a route through which you can go to Gujranwala actually, right? So these choices are not very independent. So now among the routes which go through Gujranwala to Lahore, you have to choose the best possible one, and I think there won't be many options actually, right? So this is a very trivial problem, but usually the problems are much complicated than that, okay. So there will be many options available to us, and many options will also satisfy our objectives and will also satisfy our fixed requirements, but then you still have to choose the best possible among them. So that's optimization, okay. So usually the optimization problems are maximize something, minimize something. So these are the kind of optimization problems usually are, right? So minimize cost, maximize profit, minimize distance, minimize travel time, and so on and so forth, okay. So these are the kind of things that you can come up with. For example, I think I also gave you similar types of example last time. For example, let's say DHL company. So that's another company, which courier company which delivers your letters and goods to certain places. So a DHL courier person cannot just say, I want to go from this place to that place, and I just want to deliver these things. This is not how courier services work. In courier services, you always have many requirements. For example, you can pay more to get priority service. So if you pay more, that means you want your letter delivered by 1 p.m. today. So you have to pay more, but if you pay more, then that letter must be delivered before 1 p.m. today. Similarly, you can pay for getting your letter delivered by the end of today or by tomorrow maximum. And there are certain letters which just have to be delivered within 1 week and 1 month and certain things, right? So when a courier person picks up all those letters, he has to make sure that he plans his route or her route accordingly, that he visits the places in the order of their preference, okay. He cannot just go to the place where he just has to deliver a letter within 1 month first and then go back to a place where he just has to deliver a letter today by 1 p.m. right? So he has to carefully choose his route, but he has to choose a route which minimizes his cost and also minimizes his time, right? So these are the requirements that are attached to it.
So for example, a DHL company cannot just say to its courier person, spend as much fuel as you like and spend as much time as you like, just deliver these letters. This is not a proper company model, right? They have to minimize their cost, and they also have to maximize their profits, and also have to minimize their or optimize their delivery times and other things, right? So these are the kind of optimization problems that we usually face in real life. Okay, so some of the problems we talked about last time, and I gave you a couple more examples today. Okay, so second statement, again, effective decision making both in personal and professional capacity. So there are some problems that we will face in day-to-day life. We want to make an optimized decision on them as well, but they are not, well, they are important, but they are not crucial in the sense that your career doesn't depend on them. Maybe your livelihoods doesn't depend on them. If you make a bad decision in personal life, maybe you can still put food on the table, so that's probably okay. But professional life, if you are a decision maker in professional capacity, then there is a lot of pressure. You have to make the best possible decision. One bad decision can ruin a career and can ruin a company, right? So a decision maker should have optimization tools available to him or her, because if he doesn't make an optimized decision, a best possible decision, then he will lose out in the competition to his or her competitors, and that's never good for a company. You get paid to make money for the company, right? So you do not get paid to make bad decisions and reduce the profits of your company. So you have to make the best possible decisions. So that's another important factor. If you are a decision maker, if you are a top executive, then you have to analyze all options and you have to come up with the best possible solution. And top analysts usually have optimization people available to them that do the optimization for them, right? And then they ultimately they will give him or her, the decision maker, options, and he will have to choose the best possible among the given options. Okay, so that's the kind of things that can come up. Okay, so choosing the best possible option, as I have just alluded to. So these are the kind of things that we do in optimization. Okay, furthermore, this is again the slide from the last lecture. Okay, so you have a practical problem, right? A real life problem. You want to use mathematics to solve it, to find an optimized solution to that. But that problem is from real life. Mathematics has its own language. So first of all, you have to transform that problem into the language of mathematics. So once you have transformed the problem into the language of mathematics, then you will apply some mathematical techniques to solve it. But if you do not or cannot transform your problem into mathematics, for example into equations and conditions, for example, then you will not be able to apply mathematical tools to solve it. So first, we have to transform all practical problems into the language of mathematics. That we will do very soon. Okay, so once we have the problem in mathematics, then we will apply some well-known mathematical tools to solve them. Many starting tools will come from calculus, and as soon as I name them and I start working on them, you as a student of MSc, you will be able to get a hold of them, and you'll be very comfortable with them, I'm sure. But I'm not taking anything for granted. I will revise and tell you everything I need to know, basically. So this is a self-contained course as much as I can. So of course I cannot promise that everything that I need will be in this course, but most of the things that we will need will be in this course. Okay. So again, I will use concepts of mathematics, calculus, linear algebra, let's say numerical analysis,
and other areas of mathematics to solve real life problems. So you can probably say that this course is an application course for other areas of mathematics. So I think I said this last time as well, but I'll repeat that when we do a particular course in mathematics, for example, let's say abstract algebra or linear algebra or maybe rings or maybe numerical analysis and other courses, our focus is to teach you how mathematics works. So the focus is to teach mathematics, not to teach the application side of mathematics, if you like. Because if you start focusing on the application, the mathematics side usually left behind. So mathematics side is usually left behind. Okay. So of course, being a student of mathematics, you don't want to do that. You don't want to know the applications and just don't know the mathematics. Our first core goal is to learn mathematics. So we have learned many concepts of mathematics. In this course, we will learn how to apply them to real life problems. Okay. So in the last sentence, I have basically summarized everything. So we are trying to make the art of effective decision making into a science. Okay. So we will take a problem of making a decision. That's of course an art. You cannot teach someone to make an effective decision, but you can teach someone to analyze his options. At least you can teach someone to analyze their options, right? So if you tell them that this option is bad, this option is good, this option is maybe equally good, this option is not so good, then maybe even if they are not natural decision makers, they will still be able to come up with a reasonably good decision, if you like. Okay. So we are trying to make the art of decision making into a science. So you have to make a decision. Let's analyze your options. Let us help you analyze your options. Okay. So we will consider all your options and we'll tell you which option is good for you, which option is bad for you, which option is not so good, which option is equally likely, and other things. Okay. So once you tell some executive that, he will probably be very happy that he don't have to make a blind decision, if you like. So all mathematics is an exact science, right? So exact science doesn't lie. So once you tell something based on mathematics, that's the truth. Okay. So this will happen. That's mathematics, right? So you have told him or her that this is your best option. Then he doesn't have to basically do anything and just take credit for everything. Okay. So this is our main goal. Okay, so where can we find optimization problems? So I gave you detail of 4 optimization problems last time. Please go through them again. But here is the list that I also showed you last time. But let's look at it again. So finding the shortest route, you have to go from one place to another place. You just want to save fuel. Right, so fuel is very expensive these days, so you want to save fuel. Okay, so you have to then find the shortest possible route from one place to another. Okay, second is you want to find the quickest route. You do not care how much fuel you spend or how much money you have to spend. You just have to go from one place to another place in the shortest possible time. Then you might have to spend a lot more, and you might have to take a longer route. There are many factors on this. For example, there is less traffic on the road if you're driving. Maybe there are other factors. For example, you are flying, and the flight you have available is indirect flight, but you can just take the flight now, and you will be there before your direct flight. So that's another. So you haven't taken the shortest route. Maybe the indirect flight is expensive, but you will get there before your direct flight. So you will choose that route. You want the quickest. Okay. Then you have to choose the best route under desired conditions. For example, you want to go from, let's say, maybe from Pakistan to England, for example.
but you want to make a stop over in Dubai. Okay, maybe you want to do some shopping there, maybe you want to see some relatives there, even more, you want to go from Pakistan to England and you want to make a stop over in Saudi Arabia. You want to perform Umrah there, for example, right? So people do that usually. A lot of people do this. So now you want to go from Pakistan to UK or England, but you must stop over in Saudi Arabia. Now you cannot just pick one flight which is cheapest. You can also not pick one flight which will take the shortest possible time. You have to pick a flight which takes you to Saudi Arabia and then take you to UK. So maybe you will not have any options. Maybe your only option might be the Saudi Airlines, or maybe PIA might do that for you. So sometimes you have to choose the best route under desired conditions. So if you have more than one flights available which will take you from Pakistan to UK via Saudi Arabia, then you will see which one will cost you less, which one will allow you more time in Saudi Arabia, for example. So certain things, whatever your parameters are, under your parameters you have to choose the best possible route or best possible option. Okay, making an investment decision, this is all stock markets, if you like. So in stock markets you usually sell stocks and commodities and options and things like this. So if you want to make an investment decision, you have to be very, very careful. These are probably the hardest decisions. Choosing a route, it's okay. If you get late by 15 minutes, it's okay. It's not end of the world. But if you make one bad investment decision, you will probably lose all your money. So that's something. That's all gone, ruined. So making an investment decision is harder, very hard. Okay, so in that case you have to be very, very careful and analyze your options, which stocks you should buy, that they will be very stable, they should provide you let's say dividends or interest or whatever you want to call them at the end of the month or at the end of the year. And so similar things you have to consider. Okay, you do not want to pick a very risky stock. But in stock markets, more risk, more reward, right? So you take more risks and then you will gain more. So all of these things have to be considered. Okay, so you want to maximize profit or you want to minimize risk. But it's usually true in stock markets. If you minimize your risks, you basically minimize your profit. But if you maximize your profit, you are maximizing your risk as well. Similarly, you want to just maximize your stock. For example, you own 80% of a certain company. So you want to just be the sole owner of that company. Some other people owns 20%, right? So now your goal is not to maximize your profit. You do not want to minimize your risk. You don't want to do anything. You just want to get hold of that stock from other people. So it doesn't matter how much they sell for, you will just pick it up because you want to be the sole owner of that company. Okay. Similarly, you have to design an airplane with minimum weight and desired capacity. For example, you have to design an Airbus, for example, I don't know, 350 seats, but you have to fly that plane. So more weight on the plane, more fuel consumption. Okay, so then again you have to be very, very careful. And if you go above a certain weight, then basically that's not in the capacity of the airplane, then it's not safe to fly it. So all of these things have to be considered when you are designing an airplane. So you have to minimize the weight and desired capacity. So you have to accommodate 350 people, their luggage, and probably the airplanes always carry some cargo. So you have to carry some cargo. The luggage of 350 people, let's say 40 kg each, and then the weight of 350 people. So you have to design an airplane
which carries all these things but has the minimum possible weight, so that the consumption of fuel, very expensive fuels for airplanes, right? So you have to minimize weight, and if you minimize weight with desired capacity, it will ultimately maximize your profits. So less consumption of fuel, more people, more cargo, so all of these will add up to more profits. Okay, so these are the kind of problems that we can deal in optimization, and there are more. You have certain resources available to you. For example, last time I gave you an example of, let's say, World Health Organization. They have certain teams of doctors. They want to send them to certain countries. Okay, so certain countries where the situation of health is not very good. So they want to send those doctors, the team of doctors, to those countries. And when they go to those countries, they will of course save lives, right? So if you send more teams to countries, then they will of course save lives, but you only have a limited teams of doctors. For example, let's say 5 teams of doctors in the example we did in the last class. Okay, right? So then you have to choose where you want to send those team of doctors, such that you can save maximum number of lives. So this all other things are probably okay, but saving lives is the most important thing. The most important thing. If you lose money, it's okay, but if you can save a life, it's the best thing you can do, right? So you have to carefully send those team of doctors to certain places, such that you save most lives. But again, as I said in the last class, the lives of people of one country is not more important to the lives of the people of another country. So you want to send doctors to all of these, let's say 3-4 countries, but you also want to send more teams to the country where you need it more, right? So you have to again carefully assign those teams under your fixed requirements, such that you save the maximum number of lives. Okay. Optimize your production within the constraints. So your constraint is you have only a certain number of workers. They can only work in an 8-hour shift, and for example, you do not have electricity available for all of that 8-hour shift. So what should you do that your production is still maximum? So you have the maximum amount of production, but your constraints are only 8-hour shifts, and let's say only 10 machines, workers are only 50. So these are the kind of constraints that we usually have. There are maybe constraints on the raw material. So all of these constraints in mind, and then you want to optimize your production, maximize your production. Okay. Minimize labor while obtaining desired results. Maybe it's Ramadan these days, so you do not want to work for a lot of time, because then you get tired and you will not be able to complete your fasting. So you want to minimize your labor, minimize your working hours. But of course you have life doesn't stop, right? So you have to deliver whatever is asked of you, right? So if you want to make, let's say, 15 products, you have to make 15 products, but you want to minimize your labor. So how can you do that? Well, we will see certain problems which will help you minimize your labor. Okay, another practical problem, this is very applied, that you have to, every country has a finite number of army personnel. So you have to deploy them in a way that minimizes army attack. So basically you have to deploy them at certain key areas, and then you have to basically carefully choose the distance between them, so that in case of a sudden army attack or enemy attack, you are well prepared. So one let's say battalion is not very far away from the other. So all of these
problems are usually considered when you deploy an army. Okay, so that's another very important factor that should be considered when planning something, for example, winning a war or certain things. Okay, so this is only a very finite and short list of optimization problems that we can have. There are many more, and throughout this course we will see many examples of these, and also some examples of other optimization problems that we might face. Right, so this is some revision. Let's look at some new problems for today. Today's topics, well, we will briefly look at what are mathematical models and what are variables and objective functions, and we will also look into some optimization from calculus. Okay, so this is very important, the third topic, and we will spend this lecture and maybe 1 or 2 more lectures on optimization from calculus. Okay, so let's briefly look at what are mathematical models. So here is the definition. So remember, I made a statement earlier that we will have real life problems and we want to transform them into the language of mathematics. Right, so this is our effort to transform those real life problems into the language of mathematics. Okay, so I'll try and speak in Urdu a little bit as well. So a mathematical model is an abstract model that uses mathematical language to describe the behavior of a system. Okay, अब यहाँ पे सिस्टम क्या है? सिस्टम कोई भी रियल लाइफ फिनोमेना हो सकता है, कोई मशीन का ऑपरेशन हो सकता है, सिस्टम ये भी हो सकता है कि एक फैक्ट्री कैसे रन होती है, उसमें वर्कर्स होते हैं, उसमें लेट्स से टाइमिंग्स होती हैं काम करने की, उसमें कोई और कॉन्स्टेंट्स होते हैं. तो जितनी भी चीज़ें मिल के उस सिस्टम को बनाती हैं, मशीन्स हैं, उसके रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, कितने होंगे, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना प्रॉफिट होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, ये सब मिला के ये एक सिस्टम है. फैक्ट्री रनिंग जो है ना, ये पूरा एक सिस्टम है. तो हमने क्या करना है, कोई भी सिस्टम हमारे पास गिवन होगा, उसको हमने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना. ओके, कोई भी सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होगा, उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है. तो इसको हम कहेंगे मैथमेटिकल मॉडल बना दिया हमने उस सिस्टम का. एक रियल लाइफ का सिस्टम था, उसका हमने मैथमेटिकल मॉडल बना दिया. अब वो मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करेगा आपका जो भी सिस्टम है ना, उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं होगी. उसके पूरे बिहेवियर को अगर वो डिस्क्राइब करता है तो वो उस सिस्टम का मॉडल है. ठीक है, इनिशियल मॉडल जो है उसमें आप ये करेंगे कि जितने भी फैक्टर्स हैं उस सिस्टम को रन करने के लिए, वो सब के सब फैक्टर्स आप इंक्लूड करेंगे, तो वो मॉडल, वो मैथमेटिकल मॉडल उस सिस्टम का मॉडल कहलाएगा. अगर वो कोई भी उसमें से ऐसा फैक्टर है जो उस सिस्टम में तो है लेकिन आपका मैथमेटिकल मॉडल उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो फिर ये दोनों में आपस में कॉरस्पॉन्डेंस ठीक नहीं है. ये होता है कि हम जब मैथमेटिकल मॉडल बना लेते हैं तो फिर हम कभी कभी कहते हैं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम हैंडल नहीं कर सकते, जिनमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है. फॉर एग्जांपल, आप एक सर्टेन प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपका बारिश हो जाए तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, लेकिन अगर बारिश ना हो तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी. अब ये जो फैक्टर है ना, ये इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता. हालांकि लोग प्रिडिक्शन करते हैं लेकिन प्रिडिक्शन हमेशा ट्रू नहीं होती. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम उस मॉडल में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, या उनको हम डील नहीं कर सकते. तो फिर हम उनको कहते हैं ये फैक्टर जो है ना, इसके इफेक्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि ये फैक्टर जो है ये इट्स टू हार्ड टू हैंडल बेसिकली. तो मैथमेटिकल मॉडल्स कहाँ यूज़ होते हैं? नेचुरल साइंसेज में तो ज़ाहिर होते ही हैं, मैथ्स में, फिज़िक्स में. आप ये देखेंगे फिज़िक्स का जो भी फिनोमेना आप लेते हैं वो इन द एंड एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाती है. तो वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उस फिजिकल फिनोमेना का मॉडल है, उस फिजिकल फिनोमेना का मैथमेटिकल मॉडल है. फॉर एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी की आप इक्वेशन लिखते हैं. काइनेटिक एनर्जी को आप फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं ना, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या चीज़ होती है ये, लेकिन इन द एंड एक इक्वेशन आ जाती है. इसी तरह बाकी जो भी फिनोमेनाज हैं फिजिक्स के, वो सब के सब इन द एंड एक इक्वेशन बन जाते हैं. तो वो इक्वेशन उस फिनोमेना का मॉडल है. इसी तरह
आप केमिस्ट्री में कोई आप प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उसकी आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, केमिकल इक्वेशन। अब वो केमिकल इक्वेशन लेट्स से एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो उस प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को डिफाइन कर रही है। अब ये उसका मॉडल आपने बना दिया जिससे आप अब ये आसान हो गया अंडरस्टैंड करना कि वो केमिकल प्रोसेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या होगा, वो सब के सब आप उस इक्वेशन से बता सकते हैं। या फिर आपको एक एलैबोरेटिव वे में बताना पड़ेगा, आप ऐसे करेंगे, उसके बाद एक जो चीज़ें बनेंगी वो इस तरह की होंगी। लेकिन हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, कुछ फैक्टर्स यूज़ करते हैं, उससे हम एक इक्वेशन बना देते हैं जो उसी फिजिकल फिनोमेना को एलैबोरेट करती है, डिफाइन करती है, लेकिन बहुत स्मॉल लेवल पे और बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, इंजीनियरिंग में होते हैं और इसी तरह और बहुत सारे डिसिप्लिन्स में आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम है ना, यूजुअली उसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है आपके पास, उसमें ज़ाहिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होती है, करंट होता है, उसमें रेजिस्टर्स लगे होते हैं। तो अगर लेट्स से बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये तीन आपके पास चीज़ें, तो अब आपसे ये कहा जाए कि आप वोल्टेज बैटरी आपको पता होगी कि ये आपने बैटरी लगाई है, आपको ये भी पता होगा कि रेजिस्टेंसेस जो आपने लगाई हैं वो कितने ओहम्स की हैं। तो बैटरी के वोल्ट्स पता है, रेजिस्टेंस पता है कितने ओहम्स की है। फिर आप कहेंगे अब ये बताएं कि इसके अंदर करंट जो है वो कितना रन हो रहा है। अब ज़ाहिर है आप करंट, किसी सर्किट के अंदर करंट का नॉलेज होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो सर्किट आप जिस सिस्टम के साथ लगाएंगे, आप उस सिस्टम की अपनी कैपेसिटी होगी कि इतना करंट मुझे चाहिए। तो आप ज़ाहिर एनालाइज करेंगे कि कितना करंट आपको वो आपका सर्किट दे रहा है, फिर आप उसमें रेजिस्टेंस ऐड करेंगे या निकालेंगे या बैटरी ज़्यादा करेंगे ताकि आपका डिज़ायर्ड करंट जो है वो अचीव हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इसी फिनोमेना को थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। मे बी आपने लीनियर अलजेब्रा में देखा हो, इसको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब ये बहुत फिजिकल फिनोमेना है, इंजीनियरिंग का ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिख देंगे, वो उसका मैथमेटिकल मॉडल होगा। फिर उसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे, कुछ लीनियर इक्वेशंस आएंगी आपके पास और उसके सोल्यूशन से आपको ये पता चल जाएगा इस सर्किट के अंदर कितना करंट है। ओके, सो इस तरह के ये मैंने आपको बहुत कुछ बेसिक एग्जांपल्स दी सर्किट्स की और इसी तरह फिजिकल प्रॉब्लम्स की, जिसको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको हम कहते हैं इसका मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, इसी तरह और डिसिप्लिन्स में जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मैथमेटिकल मॉडल्स की और ऑप्टिमाइजेशन की। इस कोर्स में बहुत सारी आप देखें इकोनॉमिक्स की एग्जांपल्स। ठीक है, इसी तरह सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिजिसिस्ट इसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया फिजिक्स, हर फिजिकल फिनोमेना, तकरीबन हर फिजिकल फिनोमेना को इन द एंड हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं और इकोनॉमिस्ट, जैसे मैंने अभी कहा कि इकोनॉमिक्स के आप बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें देखेंगे, ये सब लोग मैथमेटिकल मॉडल्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स अभी आ रही हैं। इसी तरह डेफिनेशन मैथमेटिकल मॉडल की, ईखॉफ क्या कहता है, वो कह रहा है कि Eekhoff defined a mathematical model as a representation of essential aspects of an existing system which presents knowledge of that system in usable form. Okay? So जैसे मैंने भी अभी कहा आपको कि आपके पास कोई भी सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है या आप कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर्स हैं वो आपको एक यूजेबल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के दे देता है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल है। तो किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम के सारे फैक्टर्स, जितने भी उसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो सब के सब आप किसी मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दें, ये यूजेबल फॉर्म जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के लोग हैं, तो मैथमेटिक्स के लोग तभी हमारे समझ में आएगी बात अगर वो मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो हम क्या कहेंगे कि जो भी आपके पास सिस्टम है उसको आपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है, और वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो वो ओरिजिनल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स सारे के सारे उसमें कंटेन्ड हों।
अगर कोई एक भी फैक्टर मिसिंग है तो ऑफ कोर्स वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूजेबल नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो उस ओरिजिनल सिस्टम की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, सो ये मैथमेटिकल मॉडल है। एग्जिस्टिंग सिस्टम, रियल लाइफ सिस्टम, प्रॉब्लम को आपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है, उसको आप कहेंगे ये मैथमेटिकल मॉडल है। होपफुली ये चीज़ आपको हो गई हो क्लियर। अब एग्जांपल्स बहुत सारी, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है, और फिर इस स्टेटमेंट को, ये रियल लाइफ का एक प्रॉब्लम है, इसको मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है या इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 मैं आपके साथ करूंगा आज, और सब के सब आसान है, कोई इनमें से इतना मुश्किल प्रॉब्लम एक भी नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को देख लें। लेट्स से आई डोंट नो, इफ यू लिव इन अ विलेज और आपके पास एक लेट्स से एक फील्ड है, ठीक है। अब उस फील्ड, तकरीबन सब लोगों ने अपनी फील्ड के अराउंड बाउंड्री लगाई होती है, फेंस लगाए होते हैं, ठीक है। अब वो फेंसिंग आपने फील्ड की करनी है, लेकिन फेंसिंग आपकी फील्ड का साइज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें गिवन नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर हो जाता है कि आपके पास कोई फील्ड है, प्लॉट है रेक्टेंगुलर, उसको हमने फेंस करना है। फेंस करने के 2 क्राइटेरिया हैं। पहले ये कि 2 साइड्स जो हैं वो हैवी ड्यूटी फेंस उनके ऊपर आपने लगाना है। हैवी ड्यूटी फेंस मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग फेंस होना चाहिए, क्योंकि मे बी उस साइड से ज़्यादा इन्फ्लक्स है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स का, जो आपकी फील्ड को ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस साइड पे 2 साइडें ऐसी हैं जिनसे इन्फ्लक्स ज़्यादा है, और रेक्टेंगुलर, आप यूजली रेक्टेंगुलर ही होते हैं हमारे फील्ड्स, तो उनके दोनों साइड के ऊपर आपने बहुत हैवी ड्यूटी फेंस लगाना है। लेकिन वो फेंस आपको $3 पर फीट में मिलेगा, ठीक है, $3 पर फीट में मिलेगा। और फिर आपने ये करना है कि बाकी जो 2 साइड्स हैं ना, उनके ऊपर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड फेंस लगा दें, वो आपको $2 पर फीट में मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, करना ये है कि आपके पास सिर्फ $6000 हैं। सिर्फ मैंने कह दिया, बहुत सारी अमाउंट है, लेकिन $6000 है आपके पास, और आपने ये फाइंड करना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मैं फेंस कर सकता हूँ इन $6000 के साथ, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर आपने मुझे बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कितना होगा, मतलब डायमेंशन उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की मैं कितनी लूँ कि वो $6000 में उसको मैं फेंस कर सकता हूँ। और फेंसिंग के लिए आपको मैंने अभी बता दिया कि 2 साइड्स को $3 वाले फेंस लगाने, और 2 साइड्स को $2 पर फीट वाले फेंस लगाने आप। अच्छा, चलें इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली करने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अच्छा चलें, रेक्टेंगुलर प्लॉट में भी इस तरह का होगा फिर, ठीक है। ये रेक्टेंगल है आपकी, ये प्लॉट है आपका, लेट्स से। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ये साइड आप लेट्स से कर दें, ये वाली साइड x है और ये वाली साइड y है, ठीक है। अब अगर ये साइड x है तो जाहिर है ये भी x है, ये y है। रेक्टेंगल है ना, ऑपोजिट साइड्स आपस में सेम होती हैं। अच्छा चलें, आपने फेंस लगाना है। लेट्स से ये जो y वाली जो साइड्स हैं ना, ये स्मॉलर साइड्स हैं, तो हम लेट्स से अभी से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, और ये y वाली जो साइड्स हैं इनके ऊपर हम $3 पर फुट वाला फेंस लगा देते हैं, ठीक है। और ये x और y लेट्स से हमने फिट में लिए हुए। तो अब y इस साइड के ऊपर मैंने फेंस लगाना है ना, तो कितने पैसे लगेंगे इसके ऊपर? $3 पर फिट, और y फिट है तो इस साइड के लिए 3y कॉस्ट आएगी, ठीक है। जितने फिट होंगे उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उतना फेंस आएगा। इस साइड के लिए भी 3y जो है कॉस्ट आएगी, और इस साइड के लिए क्या आएगी? $2 का है, 1 फिट है, और x फिट आप लगाना चाह रहे हैं, तो इस साइड की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 2x, और इस साइड की भी जो कॉस्ट है वो 2x आ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से ये y जो है, ये एग्जांपल है जस्ट, ये y जो है अगर 5 फिट हो ये वाली साइड,
तो आपके $15 लगेंगे एक साइड को फेंस करने के लिए, और इसी तरह इसके भी $15 लगेंगे, और इस साइड के अगर x 10 हो लेट्स से, तो आपके $20 लगेंगे इस साइड पे और $20 लगेंगे इस साइड पे। तो इस तरह मतलब इसकी मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जो टोटल कॉस्ट है ना इसको फेंस करने की, वो आएगी, क्या आएगी, 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3y, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इसको मैं CFX कह देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3y, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 6y, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। ओके, जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी वो है 4x प्लस 6y। ठीक है, अब आपने ये कहा हुआ है कि टोटल मेरे पास है $6,000, इससे ज़्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। तो अब इन साइड्स को के लिए फेंस जितना भी आप परचेज करेंगे ना, उसकी टोटल कॉस्ट 6,000 होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्टली 6,000 आप स्पेंड करेंगे। तो इसका मतलब है ये जो 4x प्लस 6y है ये होना चाहिए $6,000। ठीक है ना, तो जितना भी आप टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है वो $6,000 होनी चाहिए। अच्छा, अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये करना चाह रहे हैं कि ये जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, इसका एरिया आपने मैक्सिमाइज करना है, इसका एरिया आपने मैक्सिमाइज करना है कि कितना आप मैक्सिमम ले सकते हैं इस $6,000 में। तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या होता है, ये रेक्टेंगल थी आपके पास, इसका एरिया हो जाएगा x टाइम्स y। ठीक है, और आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है 4x प्लस 6y शुड बी इक्वल टू 6,000। ठीक है, ये दो आपके पास इक्वेशंस आ गई। देखें, ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 6,000, और x एक साइड है, y दूसरी साइड है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। आपको ये डेफिनेटली पता है। अब ये देखें, आप ये एरिया मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज, तो प्रॉब्लम आपका ये बन जाए, मिनिमाइज A, let's say subject to the condition 4x plus 6y equal to 6,000। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये जो a इज इक्वल टू एक्स वाई है, ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन है दो वेरिएबल्स के x और y। अच्छा, अब आपने कैलकुलस पढ़ा हुआ है काफ़ी एक्सटेंसिवली, अभी मैं कैलकुलस की कोई चीज़ यूज़ नहीं करने लगा, लेकिन आपको ये पता है कि दो वेरिएबल्स के जो फंक्शंस हैं उनको डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, और वन वेरिएबल के फंक्शन को डील करना थोड़ा आसान होता है। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये टू वेरिएबल्स का फंक्शन जो है इसको वन वेरिएबल के फंक्शन में ही ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। मैं ये करता हूँ, ये 4x प्लस 6y से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ आप फाइंड कर लें 6y इज इक्वल टू 6,000 माइनस 4x। ठीक है, और y आ जाएगा 1,000 माइनस 4/6, तो लेट्स से मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3x। सही है, तो ये आपके पास y आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू लेट्स से a आ जाएगा x इंटू लेट्स से 1,000 माइनस 2/3x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1,000x माइनस 2/3x स्क्वायर। अब ये x का एक फंक्शन है, तो आपके पास प्रॉब्लम ये बन गया कि मिनिमाइज, लेट्स से f of x is equal to 1,000x माइनस 2/3x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है, ये ऑप्टिमाइजेशन का पहला प्रॉब्लम है जो हमने लिखा। सही हो गया। अब आप इसको देख लें केयरफुली, अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करना। मेरा ख्याल है कुछ आप में से स्टूडेंट्स अभी से ये रिकग्नाइज कर लेंगे, ये तो कैलकुलस का प्रॉब्लम है, इसको मिनिमाइज करना हमने, ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमारा अभी ये गोल नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे, मे बी आज के लेक्चर में करें या इससे नेक्स्ट लेक्चर में करें।
लेकिन हमारा पहले एग्जांपल हम किस चीज़ की दे रहे हैं, हम मैथमेटिकल मॉडल बनाना चाह रहे हैं। ये आप प्रॉब्लम देख लें, आपकी एग्जांपल ये थी कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, उसके अराउंड आपने फेंस लगाना है। अब ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कभी भी आप फेस नहीं करते। ऐसा यूजुअल प्रॉब्लम होता है, आपके पास एक फील्ड्स होते हैं, आपके पास प्लॉट है, प्लॉट के अराउंड आपने बाउंड्री लगानी है, या और भी इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपने करने होते हैं। अब आपने सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को आपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो आपके पास प्रॉब्लम ये बन गया कि वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम की अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप ये सिर्फ इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को मिनिमाइज कर लें तो आप वो एक्स और वाई बता सकते हैं जो आपने उस फील्ड की डायमेंशन लेनी है। उस फील्ड की डायमेंशन लेनी है जो $6,000 में आप उसको फेंस कर सकते हैं। फेंसिंग आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी कि दो साइड्स पे स्ट्रॉन्ग फेंसिंग होगी और दो साइड पे स्टैंडर्ड फेंसिंग होगी। $2 कॉस्ट है, $3 कॉस्ट है दोनों की। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी कि आपके पास जो एरिया होगा आपके प्लॉट का वो आप मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आप उससे इनक्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी पर्सन की बहुत सारी ज़मीन है, लैंड है, और वो कहता है कि मैंने इस लैंड को फेंस करना है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं और ये कंडीशन है, आप दो साइडों पे स्ट्रॉन्ग फेंस लगाएं, उधर से लेट्स से कैटल या एनिमल ज़्यादा आते हैं तो मेरी फील्ड को नुकसान करते हैं, तो इस साइड पे आप स्ट्रॉन्ग फेंस लगाएं, और इस साइड पे घर हैं ज़्यादा या ऑलरेडी कोई बाउंड्री है तो आप इस साइड पे स्टैंडर्ड फेंस लगा सकते हैं। तो आप इतने $6,000 में कितना मेरी ज़मीन का एरिया फेंस कर देंगे, तो आप उसको बता सकते हैं कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ आपके लिए। ओके, सो ये आप जो ही इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ये हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, कोई इसमें इतना इशू नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आई एम श्योर कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने रिकग्नाइज कर लिया होगा। बाकियों के लिए हम रिवाइज भी कर देंगे, परेशान होने की बात नहीं, हम रिवाइज भी कर देंगे, हम क्या करना चाह रहे हैं वो सारी थ्योरी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि suppose that the number of bacteria in a culture at a time t is given by this. Okay, so ये एक इक्वेशन है जो हमने बनाई है। लेट्स से ये इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या कहती है कि किसी भी टाइम t के ऊपर आपके पास लेट्स से, अगर मैं इसको इफ़ यू अलाउ मी, इसको मैं एक फंक्शन ऑफ t लिखता हूँ, वो है 5000 into 25 plus t into e to the power minus t by 20, ठीक है। अब ये फंक्शन है ना t का, अब किसी भी टाइम t के ऊपर आप इस फंक्शन से बता सकते हैं कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की तादाद कितनी है, लेट्स से, और टाइम इंटरवल भी गिवन है, लेकिन मैं कहता हूँ इनिशियल बैक्टीरिया की तादाद कितनी है टाइम 0 के। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपके पास सिर्फ यही बचेगा 5000 into 25। तो आप इसको बना लें जितना भी आपके पास आंसर आता है। तो ये इनिशियल आपके पास बैक्टीरिया की तादाद है। अब बैक्टीरिया लेट्स से टाइम, अगर मैं इनको लेट्स से कहता हूँ मिनट्स में टाइम है या सेकंड्स में है, तो 1 मिनट या 1 सेकंड के बाद आपके पास कितना बैक्टीरिया की तादाद हो जाएगी 5000 into 25 प्लस 1 हो जाएगा t, और t e to the power minus 1 by 20, ठीक है। तो अब ये 1 मिनट के बाद बैक्टीरिया की आपके पास जो भी तादाद आएगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, सो अब ये आप कैलकुलेट कर लें, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। e to the power minus 1 by 20 आप किसी भी कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब 0 और 100 के दरमियान, 0 मिनट्स इनिशियल टाइम और टाइम 100 के दरमियान आप मुझे ये बता दें कि कम से कम बैक्टीरिया किस वक्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया किस वक्त होंगे। तो ये आप ये पूछ सकते हैं ये इक्वेशन कैसे बनाई है।
ये इक्वेशन अगेन बैक्टीरिया की ग्रोथ का जो मॉडल होता है उससे हमने बनाई है, ठीक है। तो ये भी हर चीज़ का एक मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल इक्वेशन होती है। इस केस में हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ टी, इसको हमने क्या करना है, इसको मिनिमाइज भी करना है और इसको मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज ऐसे नहीं करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया कितने हो सकते हैं, कब होंगे ये बता दें, और कम से कम बैक्टीरिया कब होंगे ये बता दें, ऐसे नहीं है। हमने ये बताना है कि ये 0 और 100 टाइम के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया कब होंगे और कम से कम बैक्टीरिया कब होंगे। अब आप कहीं ये नहीं समझिएगा कि इनिशियल बैक्टीरिया सबसे कम होंगे और टाइम 100 के ऊपर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ट्रिवियल हो जाता ना। इसमें बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं कि वो फैक्टर्स कब ज़्यादा होंगी कब कम होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अभी आएंगी। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसको मिनिमाइज भी हमने करना है, मैक्सिमाइज भी करना है, और टाइम इंटरवल हमारी कांस्टेंट ये है कि टाइम जो है वो 0 और 100 के दरमियान होना चाहिए। अब हमने जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ का प्रॉब्लम था उसको हमने मैथमेटिकली लिखा, और उसको जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने वाला या उसका ऑप्टिमल लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करने का जो प्रॉब्लम है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको भी हमने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख दिया। जब आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देंगे और मिनिमाइज कर देंगे तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया किस वक्त होंगे और कम से कम बैक्टीरिया किस वक्त होंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स का आंसर आपको एक वन गो में मिल जाएगा। ओके, तो ये एक और मैथमेटिकल मॉडल और ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम की एग्जांपल है कि ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम कैसे आ सकता है। ये आप याद रखिएगा, ये मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसमें बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, इसमें इतनी मुश्किल जो चीज़ें हैं वो हम इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं रहे। तो जब हम ये कोर्स आगे लेके चलेंगे तो हम ऑफ कोर्स बहुत अच्छे और ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको बहुत रियलिस्टिक लगेंगे उनके बारे में भी बात करेंगे, और जाहिर है फिर उनके ऊपर हम जो टूल्स यूज़ करेंगे वो भी थोड़े नए होंगे और थोड़े में भी मुश्किल भी होंगे। ओके, तो अभी तक बहुत आसान कोर्स चल रहा है। ओके, चलें अब हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है और बहुत रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और उसको बल्क में सेल करती है। बल्क में कैसे सेल करती है कि $100 पर यूनिट। मे बी एक ड्रम है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड सेल होता है, तो वो सिर्फ बल्क में सेल करते हैं, ऐसे स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो नहीं सेल करते। तो वो जो ड्रम है एक लत से, उसको एक यूनिट कह लें आप, वो $100 का मिलेगा, ठीक है। अब वो जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जाहिर है उसने सबसे पहले ये करना है कि अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। वो ये चाहेंगे कि हमारी कॉस्ट कम से कम हो, या मे बी वो चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब होता ये है कि जो टोटल डेली प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उस कंपनी की, वो उसके लिए हमने ये एक फंक्शन बना दिया पहले से। अगेन ये हम उसके फैक्टर्स कंपनी के कंसिडर करते हैं कि क्या कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मे बी उसके पास 50 मज़दूर हैं, लेट्स से 50 वर्कर्स हैं, और जितने वो यूनिट्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के फैक्टर्स हम इसमें काउंट करते हैं। और मे बी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है तो वो कितनी होगी, 0.025 हर x स्क्वायर यूनिट्स के लिए। तो 2 यूनिट्स अगर रोज़ाना बनाते हैं तो 4 टाइम्स 0.0025 उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होगी। तो ये इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह, इस फंक्शन को। तो ये आपके पास कॉस्ट फंक्शन है। अब आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करना ये चाह रहे हैं कि अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी ये करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रोज़ाना 7000 यूनिट्स बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा वो डेफिनेटली नहीं बना सकते।
उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब को यूज़ करके वो 7000 यूनिट्स बनाते हैं रोज़ाना। तो अब वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि हम 7000 तो बना सकते हैं, लेकिन हमें कितने बनाने चाहिए और कितने रोज़ाना सेल करने चाहिए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। अब आप यहाँ पे फिर आप ये कह सकते हैं 7000 बना सकते हैं तो 7000 बनाए ना रोज़ाना, सबको बेच दें तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं होता। जितना आप ज़्यादा देर फैक्ट्री को रन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उतनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, उतनी ज़्यादा आपको वर्कर्स को पे करना पड़ेगा, और इसी तरह बाकी सारे फैक्टर्स में भी आपकी गैस यूज़ होगी उतनी, और इसी तरह के बहुत सारे फैक्टर्स में भी टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपने कंसिडर करने होते हैं। अब आप फैक्ट्री को 24 आवर्स रन करें और 7000 यूनिट्स बना लें और 7000 यूनिट्स आपके सेल ही ना हो, रोज़ाना आपके सेल जो है 1000 यूनिट्स होते हैं और आपने उनको स्टोर भी तो करना है बाकी 6000 को। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके तो आपने ये बताना है कि कितने वो यूनिट्स रोज़ाना बनाएं कि उनका प्रॉफिट बनाएं और सेल करें, ज़ाहिर है कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, अब हमें ये पता है कि कॉस्ट कितनी है, एक्स यूनिट्स बनाने की कॉस्ट कितनी है। हमने ये फाइंड करना है कि कितने यूनिट्स बनाएं, कितने एक्स यूनिट्स बनाएं कि वो आपके पास उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अच्छा चलें, अब ये कॉस्ट है आपकी, जितने भी यूनिट्स बनाएंगे एक्स इसमें पुट कर दें, आपको कॉस्ट मिल जाएगी प्लस 50x प्लस 0.0025x स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ, लैंग्वेज मैथमेटिक्स की यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा चलें, आपने x यूनिट्स बनाए, उनको बेचेंगे तो कितना रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। याद रखें, रेवेन्यू आपका प्रॉफिट नहीं होता, रेवेन्यू आपकी सेल्स हैं। कितनी सेल्स आप होंगी, आप एक यूनिट $100 का सेल कर रहे हैं, तो अगर आप x यूनिट सेल करेंगे तो जाहिर है कितने रेवेन्यू या सेल्स कितनी होंगी, सेल्स होंगी 100 टाइम्स x। ऐसे ही है ना, अगर 5 यूनिट बनाए हैं तो $500 आपकी सेल्स हैं रोज़ाना की, लेकिन उसमें से आप वो निकालेंगे जितनी कॉस्ट है तो बाकी प्रॉफिट बचेगा। तो आपका जो प्रॉफिट है ना, लेट्स से P ऑफ X से मैं प्रॉफिट लिखता हूँ, तो प्रॉफिट जो है वो होगा रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट। जितनी आपने सेल्स की हैं माइनस वो जो बेचे आपने उनको बनाने की जितनी कॉस्ट थी, वो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 100x माइनस 100,000 माइनस 50x माइनस 0.0025x स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 50x माइनस 100,000 माइनस 0.0025x स्क्वायर। ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, चलें आपने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो ये आपके पास प्रॉफिट है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। तो आपका ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम क्या बनेगा, यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ ऑप्टिमाइजेशन का। मैक्सिमाइज, क्या मैक्सिमाइज करना है, P ऑफ X। P ऑफ X क्या था हमारे पास, लेट्स से 50x था माइनस 100,000 था और माइनस आई थिंक 0.0025x स्क्वायर। तो ये आपका प्रॉफिट है, इसको मैक्सिमाइज करना है आपने। लेकिन अब ये x है नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आप बनाते हैं और जितने आप सेल करते हैं ऑफ कोर्स। तो अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर कंडीशन ये है कि आप जाहिर है मिनिमम तो एक ही यूनिट बनाएंगे ना, मिनिमम कोई भी यूनिट ना बनाएं, कोई भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो जाहिर है कॉस्ट ही कॉस्ट आएगी, इसके अलावा प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 7,000 बना सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा यूनिट्स आप नहीं बना सकते, इससे कम बना सकते हैं। अब आप ये देखें कि अगर मैं सिर्फ कोई भी यूनिट नहीं बनाऊंगा ना, तो अब ये $100,000 या रुपीज़ जो भी आपकी करेंसी है वो आपकी स्टैंड अलोन कॉस्ट है। अब माइनस 100,000 आपका प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि आपने जो फैक्ट्री लगाई हुई है ना उसकी कॉस्ट तो आएगी और इसके साथ साथ आप वर्कर्स को पे करेंगे। अगर आप फैक्ट्री रन करते हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन वर्कर्स को पे मिलनी चाहिए।
तो अब वो 100,000 आपका रोजाना का वैसे ही खर्चा है, फैक्ट्री रन हो या ना हो, बिजली का बिल देना ही देना है, ठीक है। तो जाहिर है बिजली का बिल कम आएगा अगर फैक्ट्री रन नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। और मे बी आपकी रेंट की जगह है तो वहाँ पे उसकी भी कॉस्ट देनी ही होगी। तो ये 100,000 जो ये फिक्स कॉस्ट है जो हमेशा आएगी, आप फैक्ट्री चलाएं या ना चलाएं, ओके। सो अब अगर आप कोई भी यूनिट नहीं बनाएंगे तो फिर आप माइनस में जा रहे हैं और या जेब से पे कर रहे हैं। और इसी तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 यूनिट्स बना सकते हैं। 7,000 यूनिट से ज़्यादा आपकी फैक्ट्री की रनिंग कैपेसिटी नहीं है। और इन दोनों के दरमियान में ही आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिसाइड करने हैं जिससे आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमम आए। तो ये हम प्रॉब्लम हमने मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक फंक्शन है, उसको मैक्सिमाइज करना है, और उसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट है कि जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 7,000 से कम होने चाहिए और ज़ाहिर है 0 से ज़्यादा होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं होती, नेगेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बना दिए, ऐसा नहीं होता। ओके, सो ये अगेन एक प्रॉब्लम है जो मैंने रियल लाइफ का ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, उसको मैंने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब अगर मैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर दूं इस कंडीशन के अगेंस्ट, तो आप मैंने बेसिकली आपको ये बता दिया कि आपको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। तो मैंने आपका एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि आपने फैक्ट्री कितनी देर रन करनी है, कितने यूनिट्स आपने बना लिए, तो बस फैक्ट्री को शट डाउन कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम आपको ये बताएंगे कि आपने कितने यूनिट्स आपने रोज़ाना की प्रोडक्शन करनी है। ओके, चलें आज का लेक्चर मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। इसके बाद थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए, और इंशाल्लाह इससे आगे इसको सोल्यूशन कैसे करना है इन प्रॉब्लम्स का, इनको कैसे देखना है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आ गई ये प्रॉब्लम्स, अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो सोल्यूशन के लिए हमारे पास मैकेनिज़्म है, जो मेथड्स हैं, वो कहाँ से आते हैं। वो आपके कैलकुलस के ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे, तो वो कैलकुलस के मेथड्स को हम रिवाइज भी करेंगे, उनको थोड़ी डिटेल में देखेंगे वो क्या थे, कैसे हमने उनको यूज़ किया था। ओके, चलें अब मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। ओके, आज के लेक्चर में हमने क्या किया, अगेन हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के। तो हमने अभी तक ये देखा है ऑप्टिमाइजेशन, अगेन मैंने रिवाइज किया आज ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन हमने देखी कि बेस्ट पॉसिबल डिसीजन आपने अंडर योर कॉन्स्ट्रेंट्स आपने लेना होता है, तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं और वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन में मैथमेटिक्स कैसे आपकी हेल्प करेगा। ओके, फिर हमने कहा कि मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। अब मैथमेटिकल मॉडल ज़ाहिर है आपके पास जो भी रियल लाइफ का प्रॉब्लम है उसको जब तक आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम आपके लिए रीडेबल नहीं है, ठीक है। हर किसी की अपनी लैंग्वेज होती है ना, मैथ्स के लोगों की अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसी तरह जैसे कंप्यूटर को आपने बताना है तो उसको आपने 1-0 की फॉर्म में अपनी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करेंगे तो तब उसको समझ आएगी। इसी तरह आपने प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना है, उसको हम कहते हैं ये मैथमेटिकल मॉडल है। तो किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करना मैथमेटिकल मॉडल कहलाता है। तो जब आपके पास मैथमेटिकल मॉडल आ जाएगा फिर उसके बाद हम उसको मैथमेटिक्स के टूल्स यूज़ करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडल की फिर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाई कि कब किस तरह हम एक रियल लाइफ की स्टेटमेंट लेते हैं और उसको हम मैथमेटिक्स की इक्वेशंस की फॉर्म में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल बनाने के बाद हम उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके लिए कुछ टूल्स डेवलप करेंगे जो आपने पहले कैलकुलस में देखे हैं या दूसरी साइंस में या मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेस में आपने देखे हैं। तो होपफुली आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until then, thank you very much for your time. Thank you very much and Allah Hafiz.